एंड इट इज वेरी टफ ऑल्सो इनफैक्ट। बट पब्लिक को क्या लगता है, क्या है ऐसा कलर छोड़ दिया, मार दिया, छोटा बच्चा भी करेगा। हाँ। हाँ, एक बार पिकासो ने क्या कहा, मुझे 4 साल लगे रफाइल का ऐसे पेंटिंग करने के लिए, लेकिन मुझे पूरा मेरा जन्म स्मॉल चाइल्ड के माफिक बनाने के लिए मेरा जन्म गया। तो हाँ, पेंटिंग इज ऑल्सो लाइक दैट, यू पुट वन डॉट एंड धीरे ब्लूम होता है झाड़ के माफिक। Namaskar. Welcome to this episode of the Art Connect Studio presents The Artist Table. Today, we have a guest who has a very long history in the field of art. And it's not only art, he has been simultaneously doing a lot of things together. He has learned art in the school. Then he was an NCC cadet, served with NCC for a long time, was a school teacher, then a principal. Along with all these things, which are very disciplined and strict, he was also pursuing his art career. So, we'll welcome Mr. Ramanchari. नमस्कार सर। सर, आपका हमारे शो पे बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते वाली जो हमारी जर्नी होगी उसमें हम आपके बारे में सारी बातें पूछेंगे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, बिल्कुल, मतलब मैं आई एम सो फैसिनेटेड बाय योर जर्नी कि आपने इतनी सारी चीज़ें की है। और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आपकी बिगिनिंग कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जर्नी, एक्चुअली आई वाज बोर्न इन आंध्र प्रदेश, कडपा. It is my native. From there I shifted to Mumbai, and my father actually was working in the Reserve Bank, IG Mint, where the coins are being prepared. So we shifted to Mumbai. Then I joined my school, GBS High School. At that time, GBS High School it was. Okay. Now it is a GMES High School, Greater Mumbai Education Society. Okay. So I joined there, and I completed my SSC. And then I joined the JJ School of Art. So this is which year, sir? It is 78. 78. Okay. And completed my diploma over there. And then 1 year degree I had done there. BFA. It is called Bachelor in Fine Art. Right. And after that 1 year course, the teachers training course it is there. It is called as a DPEd, Diploma in Art Education. Right, sir. So my father actually insist me to do that job, because the old people, they have a different kind of a thought, that one should be settled होना चाहिए. Right, sir. उनको इनकम, फाइन आर्ट में कुछ इनकम ऐसा कुछ नहीं दिखता था. तो दैट्स वाई उन लोग का ख्याल ऐसा था कि इट शुड हैव अ परमानेंट job and some income also. Right. So he told me that you joined this teachers training course, because other thing you can't survive only on paintings. So okay, I done that. This at that time I used to get a stipend of 75 rupees. So you used to have some kind of a survival kind of thing, and then I completed that. Then in JJ School of Art, in the final year, actually they used to have a monsoon show. Okay. At Jahangir Art Gallery. And that monsoon show is been sponsored by Jahangir Art Gallery. Okay. So they select the best student from the art college. Right. JJ School of Art. Right. So at that time I got a chance to exhibit my work. So that was my first journey, where I could able to exhibit my paintings in an art gallery. And this was in around 84, 85. Okay. And it was quite good, and the people appreciated, the art critics at that time. Nadkarni was there. They all appreciated that, and that was my spark kind of thing. Right.
And to join in the teaching line, it was also another story behind it. That in a college, in a Teachers' Day, that 5th September, Uh-huh. they used to introduce the senior student to teach To the teach. Yes, yes, juniors. Yeah. yes, yes. So I participated in that, and 2 times, 2 years continuously, I got a best teacher award, and that was a inspiration where I thought that I can able to teach, Okay, the student, okay. and that was my teaching journey. Right. जब मेरा जहांगीर में एग्जीबिशन हुआ, तब मैंने मेरे स्कूल के टीचर, ड्राइंग टीचर, उनको इनविटेशन देने गया। तो उनका नाम था कुकनूर सर, Okay. इज फ्रॉम मैंगलोर। Mm-hmm. हाँ, तो ही वॉज वेरी हैप्पी इन फैक्ट, अरे मेरा कोई स्टूडेंट है, वो किधर तरक्की कर रहा है, तो मैं उनको इनविटेशन देने गया, ऐसा ऐसा मेरा शो है, आप आइए। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। देन उन्होंने क्या बोला कि मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, तो वाई कांट यू ज्वाइन हियर In his school. Yeah, In your very your school, your my own school, school. where Wow. I Wow. yeah, studied. हाँ. And then उसने बोला ओके ठीक है, देखते हैं। फिर उतने में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, Oh. Okay. 87 में। Uh-huh. हाँ, तो तभी मुझे मेरी मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन सरक गई। तभी उस टाइम में एक ऐसा हुआ, अभी कैसा करेंगे, हाउ आई कैन मैनेज एवरीथिंग। Uh-huh. तो देन आई जॉइंड। तो मेरे को थोड़ा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि आई वाज अ एक्स स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल, सो आई गॉट अ इन्फ्लुएंस एंड आई गॉट द जॉब। तो स्कूल ज्वाइन किया, और फिर उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, यू नो एंड करते करते मैं टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था, एज आई वाज अ ओपन कैटेगरी, Okay. ब्राह्मण कैटेगरी। सो आई कुड नॉट गेट द चांस बिकॉज इट वाज फॉर द ओबीसी एंड अदर पीपल। Mm-hmm. तो मैं 5 साल ऐसे ही करते गया, मैं विदाउट सैलरी नहीं मिलता था बराबर टाइम पे। तो सर ये तो जो आपने ज्वाइन किया था एज ए ड्राइंग टीचर ज्वाइन किया था, जो टेम्परेरी था या जो भी ड्राइंग टीचर था, बट व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड डूइंग एनसीसी, मतलब ये करते हुए एनसीसी ज्वाइन Yes, करना और एनसीसी में सर्व करना, इसके बारे में बताएं सर थोड़ा। हमारे स्कूल में एक सर हुआ करते थे, वो एनसीसी देखभाल करते थे, तो उनका रिटायरमेंट हो गया एनसीसी से। तो अभी किसको डालना है, वो एनसीसी मिलना, स्कूल में मिलना भी बहुत मुश्किल होता था, ऑल ओवर इंडिया था ना, तो इट सेंट्रल गवर्नमेंट का था, तो मिलना बहुत मुश्किल था। तो अभी कौन करेंगे, नहीं तो हमारा एनसीसी चला जाएगा। तो आई वॉज अ यंग चैप एंड आई वॉज टेम्पररी, बट एनसीसी के लिए परमानेंट होना ज़रूरी था, ओके। दैट क्लॉज वॉज देयर। सो नेचुरली आई ज्वाइन द एनसीसी, एंड मेरे दो फायदे है उसके थे, इंटेंशन थे, ताकि मैं परमानेंट हो जाऊँ। यू गॉट इट? ओके। सो दे हैव टू मेक परमानेंट इन फैक्ट। राइट। तो फिर 7 साल के बाद मैं परमानेंट हो गया। देन ऐसी मेरी एनसीसी की जर्नी चालू हो गया, और मुझे पहले से बहुत अच्छा लगता था, ट्रैकिंग वगैरह करता था मैं कॉलेज में। जेजे में हम लोग ने ट्रैकिंग चालू किया, ओके। फाइन आर्ट में। हाँ हाँ। हम लोग इगतपुरी, कलसुबाई सब पहाड़ हम लोग ने कवर किया है। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम इन जेजे आल्सो वी इंट्रोड्यूस द ट्रैकिंग, बिकॉज एज अ आर्टिस्ट वी लव नेचर एंड ऑल, राइट। नेचर, तो नेचर के पास हम लोग जाते थे। तो जब एनसीसी आपने एनसीसी ज्वाइन किया, तो फिर आपने एनसीसी को भी सर्व किया है? या तो दोनों 21 ईयर्स 21 years ज्वाइन किया, एक ईयर सर्व या किया। और उसके अंदर बहुत सारे कैंप्स होते थे, जैसे एनआईसी कैंप होता था, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, आरडीसी कैंप होता था, और ऐसे एटीसी कैंप हुआ करता था, एनुअल ट्रेनिंग कैंप। तो ये कैंप्स जंगलों में या आउटस्कर्ट में लेके जाते थे, राइट। तो उससे हम लोगों का और ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल जाता था देखने के लिए। सो जब आप एनसीसी कर रहे थे, तब आप ड्राइंग टीचर भी थे कि ड्राइंग टीचर नहीं थे? ड्राइंग टीचर था। अच्छा, ड्राइंग टीचर भी थे, एनसीसी भी थे। एंड देन यू आल्सो बिकेम अ प्रिंसिपल इन द स्कूल? In the later stage, I become a principal, because as I was serving in the NCC, I got a lot of experience in NCC, because the discipline part is there, and how to control the student, how to control the cadets and all, all this roll call and everything. So I had a experience about that. So when the management asked me about whether you can become a principal,
बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ना ड्राइंग टीचर को डिस्कार्ड किया जाता है, साइड में रखा जाता है, क्योंकि ये देयर ओनली दिस. बट आई डिडंट रिफ्यूज. वॉट एवर द चैलेंज आई गॉट, आई ट्राई टू डू इट, and I am confident about it. I can do it, and I done my NCC for 21 years. There are two different styles of working. NCC में एक डिसिप्लिन है, आपको रेगुलर ट्रैकिंग है, एक्सरसाइज है, वो है ना, दौड़ना है, और यहाँ पे आपको रिलैक्स होके आपको पेंट करना. तो दोनों को जगल कैसे करते थे? दोनों के बीच में समन्वयता कैसे लेके आते थे आप? उसमें क्या था कि एज ए मेरा अंदर क्रिएटिविटी था. मीन्स आर्टिस्ट बोला तो क्रिएटिव माइंड होता है, किधर भी जाओ, किधर भी देखेंगे तो उसके अंदर खुजते रहता है. तो मैं एनसीसी में जाता था, डिसिप्लिन तो था ही, और डिसिप्लिन तो हर जगह लगता ही है. राइट. इट इज नॉट नेसेसरी. डिसिप्लिन आ गया तो सब आधा गोल अचीव कर दिया आप लोग. तो एनसीसी का जो फिजिकल ट्रेनिंग करते थे तो अपना हेल्थ भी फिट रहता था. हाँ, ऑब्वियसली. सो इसी तरह से बैलेंस करते गया मैं. और मेरे को फोटोग्राफी का भी बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं किधर भी बाहर गाँव जाता था तो फोटोग्राफी करता था. कुछ स्टोरी लाइन बनाता था, ऐसे करते करते क्रिएटिव उधर भी यूज़ करता था मैं. राइट. कुछ अभी सपोज कुछ इवेंट है, एनसीसी डे है कुछ, तो हम लोग उधर क्रिएटिविटी से लाके उसको अच्छा से प्रेजेंटेशन करते थे. तो सर, आप जैसे एनसीसी करते करते आपने एनसीसी में आप मेजर रैंक तक गए थे, तो इट इज एक्चुअली अ बहुत लंबा प्रोसेस है वो. मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी स्कूल में था तब एनसीसी थी हमारे साथ में. ये लंबा प्रोसेस है. तो ये प्रोसेस के साथ में आपने आर्ट को भी उतना ही वेटेज देके जिंदा रखा आपके उसमें. तो ये कैसे किया, या ये क्या, इसमें क्या प्रेरणा थी आपको उसमें? मेन कोर में सब्जेक्ट वाज आर्ट ओनली. आई हैड टू डेवलप द आर्ट. एनसीसी वाज द सेकंड पार्ट. राइट. सो आर्ट के साथ मैं क्या करता था, स्कूल में क्लासेस होते थे, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट. तो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट वाज ओनली द थोड़ा इनकम लाने के लिए आर्ट टीचर्स के लिए. दैट वाज ओनली क्या बोलते हैं, एक जरिया हो जाता था. एक जरिया होता था. हाँ. फिर उसके साथ में मैं क्या करता था कि बच्चे लोगों को मिनिमम फीस लेता था, लाइक 250 300. और उसके अंदर मैं उन लोगों को एलिमेंट्री इंटरमीडिएट सिखाता था, और उसके अलावा मैं जहांगीर आर्ट गैलरी बच्चे लोग को बस से लेके जाता था. ओके. और उनको म्यूजियम सब दिखाता था. राइट. एंड तो उन लोगों को क्या है, बच्चों को एक्सप्लोर होना चाहिए. हाँ. 4 रूम में बैठ के कुछ सीखता नहीं है ज़्यादा. बाहर की दुनिया भी देखना है. और वो आर्ट जहांगीर में जाने के बाद आर्टिस्ट से बात करते थे, सिग्नेचर लेते थे, ऑटोग्राफ करते थे, तो उनके इंटरैक्ट करते थे. और कोई कोई बच्चे लोग क्या करते थे, पेंटिंग को हाथ लगाना, ये सब वो सब नहीं करना है. तो बाहर जाने के बाद कैसे बिहेव करना है, ये बच्चे लोग को डिसिप्लिन आ जाता है, कैसे सीखना है. सही है. तो उनको बाहर का जो आर्ट है, बाहर कैसा क्या काम चल रहा है, वो सब उसको एक्सप्लोर हो जाता है. ये मैं करता था. उनको जितना मैक्सिमम नॉलेज दे सकूँ उतना करता था. जैसे आप मेजर बने, तो उसके लिए आप मतलब उसके लिए आपने कितना समय दिया मेजर? नहीं, वो तो उसका प्रोटोकॉल होता है. जैसा एक 3 साल के बाद या 4 साल के बाद वन हैज टू डू द रिफ्रेशिंग कोर्स. तो वो रिफ्रेशिंग कोर्स होता है 2 महीने का होता है, 1-2 महीने का. तो करना ही पड़ता है हमको. और फिर मतलब एक तरह रैंक मिलता है. एक ये रैंक मिल गया, और आप दूसरी तरफ आप आर्ट करें. तो स्कूल बेसिकली स्कूल ने आपको दोनों के बीच में जगल करने के लिए आपने आपका आर्ट फॉर्म जो है वो मेजरली एब्स्ट्रैक्ट की तरफ रखा है. तो ये एब्स्ट्रैक्ट ही क्यों, व्हाई एब्स्ट्रैक्ट? मैं एक्चुअली जब कॉलेज में था तो कॉलेज में मैं फिगरेटिव करता था. हाँ. इट इज अ काइंड ऑफ अ जर्नी, राइट, टू बी फ्रैंक. हाँ. तो वो एब्स्ट्रैक्ट एक काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल मुझे लगा. पहले मैं फिगरेटिव करता था, फिगरेटिव और मीनिंगफुल ऐसा कुछ लाने के लिए. फिर उसके बाद उसमें तांत्रिक करता था, तंत्रा वॉज माय. लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, हमारे कॉलेज में एक सर थे कोलते करके. तो हम लोग कोलते सर ने पूछा सब बच्चे को आके
तुम्हारे पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब करो ऐसा। तो बात करते थे हमारे पेंटिंग के बारे में, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग मीनिंगफुल पिक्चर बनाते रहेंगे। हाँ, वो तो उसके लिए अलग अलग जरिया है, मीडियम है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, वीडियो है, फिल्म है, उसमें मालूम पड़ जाता है। तो हम लोगों को कुछ अलग बनाना है, हम्म समथिंग डिफरेंट हम्म from other. Hmm. It should be representing me only, not Ram. राइट राइट हाँ, हाँ वर्क देखेंगे तो एम एफ हुसैन का वर्क देखेंगे तो उन्हें बोलेंगे ये घोड़े वीडे बनाया तो एम एफ हुसैन है, सही है यू नो। हाँ हाँ अभी कोई लोग लैंडस्केप बनाते हैं, वाटर कलर लैंडस्केप, अच्छी बात है, नॉट, लेकिन अभी वाटर कलर लैंडस्केप आप नीचे डालेंगे 20-50 लोगों का, और आपको बोलेंगे आपका लैंडस्केप ढूंढो, तो आप किधर है मेरा, ये ऐसे सेम है, ऐसा आपको कंफ्यूज हो जाता है। ओके मीन्स इट इज अ मोस्टली नहीं सिग्नेचर हाँ आपका आपका काम का एक स्टाइल एक सिग्नेचर स्टाइल है होता हाँ है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ओके जैसा आप देखेंगे एम एफ हुसैन का एक स्टाइल है, तैयब मेहता जी सर का एक स्टाइल है, बरवे सर का एक स्टाइल है, सो हर एक, तो हम लोग वो पेंटिंग देखने के बाद बोल देते हैं कि ये बरवे का राइट है, ये तैयब मेहता जी का है। हाँ 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 तो वो आइडेंटिटी आना चाहिए अपना, राइट ओरिजिनल, हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट। और इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल, मैं क्यों बोला, क्योंकि अभी हम लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान का आइडल को नमस्कार करते हैं। और कॉमन मैन होता है ना, वो पहला उसको प्रार्थना करता है, फिर बाद में धीरे धीरे वन आप मैच्योर हो जाते हैं, तो आपको सब जगह भगवान दिखता है, सही है निराकार। आई अंडरस्टैंड यस हाँ, यस सो यस उसी तरह से है। तो पहला मंदिर में तो हम लोग पोर्ट्रेट और फिगर सब बनाते हैं, फिर बाद में वो एजुकेशन इसमें एकेडमिक में तो आ जाता है, फिगर ड्राइंग ये सब। हाँ, फिर बाद में धीरे उससे आगे जाना है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है तो इसके बारे में जो पहला आपको कुछ चीज ध्यान आता है कि आपने आपने एब्स्ट्रैक्ट में घुसने का जो सोचा होगा तो उसकी उसके उसकी तो कुछ कहानी होगी मुझे आई एम श्योर कुछ तो होगा या एक्चुअली माय ब्रदर ही वाज अ जियोलॉजिस्ट, ओके एंड उसका काम क्या था, वो 100 मीटर बिलो द अर्थ सैंपल निकाला जाता है, तो उसका स्टडी करके उसका रिपोर्ट देना पड़ता था। ओके उसको 3 सेक्शन करते थे, बारीक पतला सा लाइक ब्लड के सैंपल के माफिक हाँ करते थे, और उसको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से उसको देखा करते थे, और उसके हिसाब से वो रिपोर्ट बनाते थे, जैसा अपना ब्लड रिपोर्ट कैसा होता है। राइट राइट तो वो करते थे, तो वो जब देखते थे ना, वो स्लाइड देखते थे ना, आप इट विल बी वेरी थ्रिल, इतना ब्यूटीफुल कलर है, अपना पेंटिंग भी उसके सामने कुछ नहीं। ओके तो दैट वाज माय इंस्पिरेशन, एंड उसके हिसाब से मैंने एक एग्जीबिशन किया था फॉसिल्स करके। ओके इसके 100 मीटर बिलो द अर्थ ऑल्सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स यस एंड उसका डेट, हाँ उसका कितना साल हो गया, कितने साल का ये है, वो सब बताते हैं, उसमें रिपोर्ट आता है। तो वो मेरे को इंस्पायर हो गया, और मैं वो स्टार्ट करने लगा। फिर धीरे धीरे फिर स्पेस के बारे में मैं सोचने लगा, और स्पेस में जैसे नासा ने रॉकेट में जाके मंगलयान में या इधर उधर फोटोग्राफ किए, तो इतना ब्यूटीफुल फोटोग्राफ है जो नेकड आई से हम लोग को दिखाई नहीं देता है। सही है हम लोग को खाली अवकाश दिखता है, आकाश दिखता है, स्काई हाँ प्लेन, हाँ हाँ इट्स लाइक ए कैनवास। राइट बट उसके अंदर गए ना, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ एस्ट्रॉयड एंड फॉर्म्स, अलग अलग स्टार्स, यू नो, एंड डेप्थ होता है। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और वैसे करते गया मैं। तो इट वाज वो एब्स्ट्रैक्ट में मैं खिल गया अंदर। और एब्स्ट्रैक्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन फैक्ट, ऑब्वियसली यस यस बिकॉज इसके अंदर आपको पता नहीं चलता है कि अभी आगे क्या होने वाला है। स्काई में भी आप लोग जाते तो मालूम नहीं पड़ेगा क्या आने वाला है। तो हाँ। ऐसा वो एब्स्ट्रैक्ट में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आगे बढ़ते रहता है, और लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा वो मालूम नहीं है। जब अच्छा रिजल्ट आता है तभी स्टॉप तब करना stop हो जाता है, अपने को होना चाहिए, नहीं तो वो खराब भी हो सकता है। जैसे एक बार पर्सीकर ने क्या बोला था कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ एपिसोड। ओके हाँ तो एक पेंटिंग इज एन एपिसोड। तो एक बार आप डॉट डाला, हम्म इट इज़ लाइक अ सीड,
सीड ऑफ banyan tree, you can see banyan tree का उसका सीड कितना छोटा बहुत होता छोटा है, था, हाँ हाँ, और वो बाद में बड़ा कितना बड़ा हो जाता है। राइट, तो हाँ पेंटिंग इज ऑल्सो लाइक दैट, यू पुट वन डॉट एंड धीरे ब्लूम होता है झाड़ के वहाँ पे, और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि वो स्टैग्नेंट हो जाता है, मीन्स आगे नहीं बढ़ता है, तभी हाँ। आपको स्टॉप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ। मैंने बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट से बात किया है कि दे वुड स्टार्ट, वो रहता है, पर उनको ये नहीं मालूम होता है कहाँ पे स्टॉप। माइंड के अंदर एक विजन रहता है, हाँ, वो विजन के पास आते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है टेक्निकली थोड़ा सूट नहीं होता है कभी किसी को, तो कभी अच्छा आ जाता है, इतना शॉर्ट टाइम ऑल्सो इट विल बिकम वेरी गुड। तो सर आई अंडरस्टैंड आपका इंस्पिरेशन, जो जैसे आपने Yeah. वहाँ पे देखा कि सॉइल के माइक्रोस्कोप से आपने देखा, और फिर आप नासा के इमेजेस देखी। सो एक हमारे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए बेसिकली ये बात आप थोड़ा सा बताएं कि आपका पूरा प्रोसेस क्या है, मतलब हाउ डू यू स्टार्ट और एंड तक का आपका पूरा क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में हमको बताएं सर। अभी एक बार हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं किसको देखने के बाद, तो अपने को मन में लगता है कि चलो विल डू द पेंटिंग, ओके। देन मैं क्या करता हूँ, मैं कैनवास को सुला देता हूँ, अच्छा, उसके ऊपर सोचते रहता हूँ कैसे स्टार्ट करूँ, और कलर एक बार फ्लैश करता हूँ, फिर बाद में द जर्नी स्टार्ट्स, यू नो, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी नेक्स्ट उसको इसके बाद क्या करना है, तो आप ऐसे आप रोल नीचे रोल फेंक देते हैं, या और उसके ऊपर कलर फेंक देते हैं। कलर स्टार्ट करते हैं जैसा अच्छा, सीड के माफे, सीड के माफ, अच्छा, हाँ हाँ, फिर धीरे धीरे उसका थॉट प्रोसेस चालू होता है, अभी ये करना है, ये कलर डालो, तो वैसे प्रोसेस होते होते एक स्टेज आ जाता है सैचुरेशन पर, फिर उधर आपको ज़्यादा काम नहीं करना, अगर ज़्यादा काम करेगा तो बिगड़ जाएगा। हाँ, तो एक वो अपने को अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, और फिर उधर स्टॉप कर देता हूँ। तो आप जो मीडियम यूज करते हैं, हाँ। वो आप पेपर भी करते हैं या खाली कैनवस करते हैं? मैं कैनवास पेपर में भी करता हूँ और एक्सरे फिल्म में भी करता हूँ। एक्सरे फिल्म भी करते हैं, या ओके। एक्चुअली एक्सरे फिल्म का एक स्टोरी है ऐसा, मीन्स मेरी माँ बीमार थी, शी वॉज फॉर लॉन्ग फॉर 1 or 2 years, एंड उसका एक्सरे सब निकालना पड़ता था मेडिकल। तो जब मेरी माँ एक्सपायर हो गई 2008 में, तभी वो पूरा मेडिकल जो कचरा था, वो कचरा नहीं बोल सकते, वो हाँ। निकाला सब, हाँ। एक्सरे फिल्म सा, हाँ। बहुत सारा एक्सरे फिल्म था, अभी क्या करूँ मैं, तो मैं बोला इसका यूटिलाइज करते हैं, फिर ट्राई, तो मैंने एक्रेलिक से पहला स्टार्ट किया, एक्रेलिक से स्टार्ट किया तो थोड़ा जमा नहीं, फिर बाद में उसको रॉ कलर यूज़ करना पड़ता है इम्पेस्टो टेक्निक से, ओके। तो वो नाइफ टेक्निक से मैं उसको स्टार्ट किया, हाँ। और आई स्टार्टेड गेटिंग गुड रिजल्ट। ओके। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट उसका रीज़न ये था कि आई यूज्ड टू गेट अ डेप्थ इन द पिक्चर, बिकॉज complete X-ray was a black in color. हाँ, dark. हाँ, So I used to get the depth in because of the black, राइट। and I can use less colors comparatively. So सक्सेस हो गया, एग्जीबिशन में भी मेरे पेंटिंग है, हाँ, थोड़े पेंटिंग सेल भी हो गए उसके अंदर, तो अच्छा, और छोटे छोटे होते हैं। फिर बाद में मेरे को एक डॉक्टर मिले, राजेश उपाध्याय करके, वो ऑर्थोपेडिस्ट है, तो उसने मेरे को इतना लेके जा बोला, तभी कोरोना का टाइम में क्या करेगा, बाहर तो नहीं जा सकते, घर पे ही करता था। कोरोना के टाइम में नियरली 250 मैंने पेंटिंग्स बनाए घर पे, एक्सरेज पे। एक्सरेस पे। वाह। वो एक्सरेस का एक सीरीज ही हो गया। फिर बाद में फिर मेरे को एक्सरेस कंटाल आने लगा, हाँ, बस अभी obviously. वो एक मोनोटोनस हो जाता है हाँ। कभी, तो फिर मैंने पेपर में स्टार्ट किया, फिर कैनवास पे स्टार्टिंग में मैं कैनवास बनाता था। हाँ हाँ हाँ। तभी क्या, बहुत कॉस्टली था कैनवास सब, वी कुड नॉट अफोर्ड इट। सो पहला क्या करता था, कपड़ा लाता था मस्जिद बंदर से, कैनवास का, उसको फ्रेम बना के, हाँ, फ्रेम भी अम्मी बनाते थे एक्सो ब्लेड से वो सब। अच्छा, हाँ, ओके। फिर बाद में उसको किले, टेकस के किले आते थे, वो मार के फिर उसके ऊपर सरस करके आता था, ये हार्डवेयर में मिलता है सरस, ओके। वो गरम करते थे, गंदा बास आता है, वो हाँ। गरम करके उसका जो डाइल्यूट वो लगा देते। फिर थोड़ा दिन के बाद वो भी नहीं चला, तो उसके बाद फिर प्राइमर यूज़ करने लगा। प्राइमर में क्या होता था, वो क्रैक हो जाता था। ओके। फिर बाद में टेक्सचर वाइट यूज़ करने लगा, वो कैमल में कैमल का, कंपनी में हाँ। टेक्सचर वाइट आता है, वो यूज़ करने लगा, वो वाटर बेस है, तो बराबर
होल्स में अंदर बराबर बैठता था, उससे करता था। फिर बाद में एक सर्टन एज तक करता था, बाद में हमको अपना बॉडी भी साथ नहीं देता है इतना मेहनत करके। इतना मेहनत करने के बाद अपने को पेंटिंग करने के लिए फिर मूड चला जाता है। तो फिर बाद में धीरे स्कूल में और हम लोग लगने के बाद अपने को थोड़ा इनकम आता है, तो वी स्टार्टेड परचेसिंग द रोल एंड अदर थिंग्स एंड स्टार्टेड डूइंग। फिर व्हाट हैपेंड, वो काम करते करते हमारा जो इंस्पिरेशन है ना वो निकल जाता है, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब जब हम स्ट्रेन हो जाता जब जब एकदम बिल्कुल आइडिया थॉट्स आई रहती है और उस वक्त हम दूसरा कुछ काम करेंगे तो वो लॉस हो जाता है। है। पर मैं फिर से उसी उसी पहले वाले सवाल पे वापस आता हूँ कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ बनाना है, फॉर एग्जाम्पल से गैलेक्सी बनाना है, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि एक गैलेक्सी बनाना है आपको, तो वो जो गैलेक्सी बनाने का जो आइडिया है, तो आपके पास में इमेज आपके दिमाग में पूरा रहता है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा पूरा कुछ भी नहीं, थोड़ा वेग रहता है। वेग रहता है। या अच्छा, तो वो करते करते है ना अपने को अंदर से रिजल्ट आते जाते और कोई रेफरेंस पिक्चर्स रहते हैं? हैं। नहीं नहीं नहीं। नहीं, मोस्टली नहीं। कभी अच्छा, कभी हम लोग पेंटिंग को देखने के बाद हाँ ये पेंटिंग देखा मुझे ये, तो इंस्पायर हो जाता हूँ। ओके, तो फिर इसके अलग से करता हूँ मैं, इसके ऐसे नहीं करूँगा। उसका कलर का अभी फॉर एग्जांपल कभी वॉल देखते हैं, डैमेज वॉल है, हाँ, तो उसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे फॉर्म्स अपने को दिखते हैं, तो राइट, इंस्पायर हो जाता है। हाँ हाँ तो उसके हाँ, बाद फिर बाद में करता हूँ। वो क्रैक्स, जो क्रैक्स या रहते क्रैक्स हैं, आते हैं, उसमें वो फॉर्म्स पपड़ी आते निकला हुआ रहता है, हैं, उसके या अंदर पपड़ी फॉर्म्स आ निकलता जाते है, हैं। उसमें हाँ, अलग अलग कलर्स आते हैं। राइट वो राइट, सब देख के इंस्पायर होता रहता है और फिर स्टार्ट करता हूँ। कैनवास हम लोग को सिखाता है, इट इट गिव एंड टेक है। इट विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। या हाँ, तो वो बराबर है। काम करते करते अपने को अंदर से बाहर आता है, तो उसको कैच करके रखने का। मैंने 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 एक आर्टिस्ट से बात करा था, उन्होंने ये बोला कि सबसे सबसे पहले तुमको कैनवस से दोस्ती करना पड़ेगा। या तो जब वो दोस्ती करोगे तो इट विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, यस सो यू नीड टू लिसन टू द कैनवस। ब्लैंक कैनवास में बहुत अपने को कभी कभी डर भी लगता है। हाँ, वाइट कैनवास में देख के अभी कैसा स्टार्ट करूँ मैं, कभी राइट, कभी एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है, देखते रहते हैं हम लोग, लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। हाँ हाँ है हाँ, वेरी। तो उस तरह से एक बार चालू किया ना, देन फिर उसका जर्नी चालू होता है। फिर कौन पूजा बाजू में कौन है पता भी नहीं चलता, काम चलते रहता है। आप जब वो कैनवस को ऐसे बैठे बैठे दो दो दिन तक देखते हैं कैनवस को, और फिर आप चालू करते हैं, तो इज इट अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉर यू? ऐसा लगता है कि ये एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है आर्ट, और ये एब्स्ट्रैक्ट इज अ स्पिरिचुअल जर्नी फॉर या यू? एक्चुअली द पेंटिंग इज इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन फॉर मी। उसमें क्या होता है, एक काइंड ऑफ अ साधना। कोई भी आर्टिस्ट हो तो उसमें काम में लगे रहते हैं ना, एक बार स्टार्ट किया तो उसमें डूब जाते हैं। बाजू में कोई भी बोलेंगे चलो खाना खाने चलो, हम बोलेंगे नहीं बाद में आता हूँ, जाओ। फिर फिर ब्रेक किया, फिर बाद में भी अपना माइंड इधर ही चलते रहता है, राइट, पेंटिंग कंप्लीट करना है मुझे। हाँ हाँ, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, इट इज़ अ मेडिटेशन बट द फॉर्म इज डिफरेंट। अब सीधा बैठ के योगा टाइप मेडिटेशन नहीं है, एक कर्म योग काइंड ऑफ थिंग है। जैसे गायतोंडे अलूफ रहता था, एक रूम में क्वारंटाइन होके काम करता था, इट वॉज नथिंग, काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। हाँ हाँ, एंड जब एक बार स्टार्ट किया ना, ख़त्म होने तक अपने को ये नहीं मिलेगा, यू कैनॉट, यू विल बी रेस्टलेस। हाँ हाँ। जब एक काम खत्म होगा तो देन यू विल बी रिलैक्स, रिलीज हो गया, यू नो दैट इज व्हाट आई फील इन द मैन। तो यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई या नो, राइट? तो आपको आर्ट से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहे हो, या स्पिरिचुअल हो इसके लिए आर्ट अच्छी तरह से होता है? नहीं, आर्ट के थ्रू से स्पिरिचुअल ज़्यादा मैग्नीफाइन हो जाता है। ओके, स्पिरिचुअल तो हम लोग करते हैं, लेकिन वो खाली ऊपर करते हैं, लेकिन इन्वॉल्व होके करना वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये आर्ट जो है वो हम लोग को रियल स्पिरिचुअलिटी देती है ओके, एक्चुअली, मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, क्योंकि नॉर्मल हम लोग करते हैं सब, लेकिन आर्ट में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो वो एक अलग, उसका जो मज़ा है स्पिरिचुअलिटी, वो अलग है। सर रिटायरमेंट तक आप स्कूल में पढ़ाते थे, अब आप रिटायर हो चुके हैं, तो अब उसके आगे का आपका क्या है? अभी करंट में आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं खुद के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मेरे पेंटिंग के ऊपर,
और एग्जीबिशंस वगैरह करता हूँ मैं। Okay. और ज़्यादा से फुल फ्लेज मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ हमारे। पहले बीच में मैं ट्यूशन भी लेता था, लेकिन तभी क्या होता था कि मैं हमेशा बाहर गाँव इधर उधर जाता था तो कमिटेड हो जाता था। हम्म। तो इसके लिए मैं अभी वो स्टॉप कर दिया। अभी फुल फ्लेज मैं पेंटिंग में ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। वाह। मेरे मीडिया एक्रेलिक है, कैनवास पे एक्रेलिक यूज़ करता हूँ, क्योंकि पहले मैं ऑयल पेंट यूज़ करता था और उसके पहले मैं एनामिल यूज़ करता था। हाँ। तो उसका एक अलग ही ये था, मज़ा था, उसका अलग फील है, अलग फील है अलग टेक्सचर और है। हाँ ब्राइटनेस रहता था हाँ और हाँ। सूखता था, लेकिन उसके अंदर बहुत स्मेल आता था। ऑयल पेंट तो करता था बीच बीच में, लेकिन ऑयल पेंट वॉज वेरी कॉस्टली एट दैट टाइम। एक एक ट्यूब देखे तो हाँ। 200-400 रुपये का ऐसा रहता था। सही बात है। तो इसके लिए एनामल यूज़ करता था और एनामल से मैंने बहुत पेंटिंग की है अच्छे अच्छे। हाँ, लेकिन प्रभाकर बर्वे भी एनामल यूज़ करते थे, ओके लेकिन वो उसको डाइल्यूट बनाते थे, ओके। टर्पेंटाइल से पतला करते थे, वाटर कलर टाइप। हाँ हाँ। मैं थोड़ा इम्पेस्टो टेक्निक से काम करता था। ओके। इवन मैं तभी पहला कॉलेज का टाइम में वी यूज्ड टू ब्रिंग द दिस टी का बोर्ड होता था ना, चाय चाय का बॉक्स होता था। हाँ 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 हाँ, वो हाँ। कुरला से हम लोग लेके आते थे, वो चाय का बॉक्स ऐसा ये करते थे, तो उसको बराबर काट के हाँ। उसके ऊपर भी पेंट करता था। ओके। हाँ। बिकॉज पुराने आर्टिस्ट लोग ने बहुत कुछ काम किया है अलग अलग इसके ऊपर, कार्डबोर्ड पे किया है, यू नो हार्डबोर्ड पे किया है, हाँ हाँ कैनवास पे किया है, हाँ। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक ये किया है उस टाइम में। तो उसी तरह से मैं भी, हम लोग भी कुछ करता था इन्वेंशन। तो आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है? अभी तो फिलहाल एक्रेलिक ही करता हूँ। तो आपको एक्रेलिक में काम करने में ज्यादा मजा आता है? क्योंकि वो जल्दी सूखता भी है ओके। और जल्दी ड्राई होके अपने को बाजू में किधर रख सकते हैं। लेकिन ऑयल पेंट में क्या होता है, 2-4 दिन लगता है सूखने के लिए, है ना। बट ऑयल पेंट ऑयल पेंट का अलग वो उसका है, टेक्सचर, आप उसका और उसका काम फील, कर सकते हैं, हाँ उसका फील अलग है, अलग एक्रेलिक का है। फील अलग है। और वो उसके पे 2-3 दिन हम लोग काम कर सकते हैं। पर जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जैसे हम्म। मेरा जितना भी अल्प ज्ञान है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट। पर मुझे ये जहाँ तक जितना मैं समझता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट पे आप लेयर्स पे काम करते हैं, तो आई थिंक एक्रिलिक ज़्यादा इजी हो जाता है। आपने एक लेयर डाला, वो जल्दी सूखा, फिर अपने उस पर दूसरा लेयर, जब तक आपके थॉट प्रोसेस चल रहे हैं तब तक आप दूसरा तीसरा लेयर उसके अंदर वाटर कलर टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। हाँ, एक्रेलिक में सूख जल्दी जाता है, इसके लिए सूख जाए ना, ट्रांसपेरेंसी भी आ जाता है। राइट राइट। हाँ हाँ। हम लोग कैसे भी खेल सकते हैं उसको। राइट। तो ऑयल में, ट्रांसपेरेंसी हाँ ऑयल में उतना खेलना नहीं मुश्किल हो होता जाता है, है। हाँ ऑयल में थोड़ा ये होता है, राइट। दैट इज द डिफरेंस। वो काम करते करते अपने को मिलता है, वो सिखाते मतलब रहते और एक्रेलिक में मेरे ख्याल से ना टेक्सचर्स भी बहुत अच्छी तरह से आता है। आप टेक्सचर यूज करते हैं, राइट? या टेक्सचर। हाँ। वो टेक्सचर क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली आ जाता है कभी। ओके। जरूरी नहीं कि आप वैसे ही करना है करके, आप करते करते आपको मिल जाता है और वो आप लोग को फिर उसको डेवलप करते हो। राइट। मेन थिंग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में यू शुड गेट अ डेप्थ इन द पिक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। वो मैं कोशिश करता हूँ डेप्थ लाने की, अंदर कुछ है, ऐसा है। एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज़ अ वेरी फनी थिंग दैट आपको, आप देखेंगे तो आप अलग इस हिसाब से उसको इंटरप्रेट इंटरप्रेट करेंगे। करेंगे। हाँ। हर एक आदमी देखेंगे तो उसको अलग अलग वे से देखेंगे। दैट इज वॉज ब्यूटी ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो वो आपका, आप जब बना रहे तब आपका आपका नजरिया, आप जिस हाँ। नजरिए से बना रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस है, या पर देखने वाला उसको अपने थॉट प्रोसेस से यस देखेगा यस यस, और एंजॉय yes, करना, that enjoy, एंजॉय हाँ। करना चाहिए। अभी क्या होता है, नॉर्मली हम लोग फिगरेटिव बनाते हैं या जो भी रियलिस्टिक बोलते हैं, तो उसमें एक लिमिटेशन आ जाता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में इतना लिमिटेशन नहीं आता है, आगे जाते रहते हैं। और वो एब्स्ट्रैक्ट कभी कभी क्या होता है, कॉमन मैन बोलता है अच्छा दिखता है, मस्त है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, हाँ हाँ, ये कॉमन कॉमन मैन क्वेश्चन। का, हाँ हाँ। मुझे समझ में नहीं आता क्या निकाला। तो आप देखो, आनंद मिला ना बस। अभी फॉर एग्जांपल आप सनसेट देखते हो या स्काई में क्लाउड्स वगैरह देखते हैं, तो ब्यूटीफुल रेस आता है, कलर कॉम्बिनेशन आता है, और इमीडिएटली व्हाट यू डू, यू टेक अ मोबाइल एंड क्लिक करते हैं, सेल्फी निकालते हैं, हाँ। फोटो नहीं, क्यों निकालते हैं? उसका मीनिंग देखने के लिए नहीं निकालते हैं, अच्छा लग रहा है अच्छा लग आपको। रहा है इसलिए। हाँ हाँ, हाँ हाँ। उसका मीनिंग पूछे क्या मीनिंग है, ऐसा हम लोग पूछते नहीं है। सो दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट।
बस वो मेरे को वही ध्यान आया कि वो कोई देख रहा तो बोला कि क्या इसका मीनिंग है, तो उसने बोला आम खाना पेड़ क्यों गिन रहा है। Yeah, तो that is यू लाइकिंग इट, देख लो आप उसको अच्छी और तरह से आजकल समझ लो। कॉमन पीपल को क्या है कि वो देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव उसका कुत्ता है या झाड़ है, ऐसा वो रिप्रेजेंट रिलेट करते हैं, राइट। यू नो। हाँ। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है, वो अलग ये होता है। इट इज़ वेरी एंजॉयबल एंड इट इज़ वेरी टफ ऑल्सो इनफैक्ट। बट पब्लिक को क्या लगता है, क्या है ऐसा कलर छोड़ दिया, मार दिया, छोटा बच्चा भी करेगा। हाँ। हाँ, एक बार पिकासो ने क्या कहा, मुझे 4 साल लगे रफ़ाइल का ऐसे पेंटिंग करने के लिए, लेकिन मुझे पूरा मेरा जन्म स्मॉल चाइल्ड के माफिक बनाने के लिए मेरा जन्म गया। पिकासो का वर्ड है। राइट। हम लोग हाँ, करेंगे, 4 साल लगेगा उसके ऐसा सेम रिप्लिका करने के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा चाइल्ड लाइक आर्ट करने के लिए आपको बहुत टाइम तो टाइम लगेगा, लगेगा। सही बात है। वो इनोसेंट है, वो चाइल्ड कुछ भी ऐसा पेंटिंग करता है तो कितना फोर्स रहता है उसका अंदर, वो कलर में वगैरह, इसमें नेचुरल रहता है। तो सर आपकी इस पूरी जर्नी में आपके इंस्पिरेशन कौन रहे, कौन से ऐसे मास्टर्स है या कौन से ऐसे टीचर्स है जिसने आपको इंस्पायर किया इस पर्टिकुलर जर्नी में? अभी उस ऐसा देखा जाएगा तो प्रभाकर बर्वे थे हमारा टाइम, और कोलते सर थे हमारे प्रोफेसर। आपके या प्रोफेसर? जी जी तो उन्होंने हमें आदत लगाया कि एवरी 15 डेज हम लोग एक ग्रुप बनाया था हम लोग ने। ओके। हमारे टाइम में अतुल दोड़िया भी थे हमारे ग्रुप में, विजय शिंदे, अच्छे अभी नामी आर्टिस्ट बन गए। तो उनके साथ हम लोग जाते थे, विजिट करते थे हर एक आर्टिस्ट को। सपोज अच्छा, आप हाँ, लोग अब ग्रुप बना के आप सीनियर आर्टिस्ट को विजिट करते थे? विजिट करते थे। जैसे ओके। हम लोग ने अकबर पदमसी के पास गए थे, एम.एफ. हुसैन गए, पलसीकर गए, हेब्बार के हेब्बार, ओके। तैयब मेहता जी। हाँ। तो ऐसे लोगों के पास हम लोग जाते थे, एक दिन निकालते थे उनके साथ, और उनके साथ सवाल जवाब करते थे, जैसे इंटरव्यू करते थे। तो उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिलता था। वो भी मास्टर्स आपके टाइम या देते थे? मास्टर, या वाह। और उन लोगों को हाँ, भी अच्छा लगता अच्छा था कि लगा। कोई हाँ। आते हमारे यहाँ। हाँ। तो उसे हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना एक ये है, क्या बोलते हैं उसका, तजुर्बा है, क्या बोलते हैं। जैसे तैयब मेहता है, तैयब मेहता इज़ फाउंड फॉर स्पेस डिवीजन। कैनवास में उसका एकदम सिंप्लिसिटी रहेगा, और स्पेस डिवाइड अच्छा एकदम बैलेंसिंग करेगा, ओके। और कलर एप्लीकेशन बहुत अच्छा रहता है। इज अ हाँ। मास्टर इन दैट। हाँ। हाँ। गायतोंडे किसी से मिलते भी नहीं थे, ही इज़ वेरी अलूफ पर्सन। हमारे सर को भी मिलने नहीं देते थे, तो अकेला बैठते थे, वो अपना हिसाब से काम करते थे। तो कहने का यही तात्पर्य था कि हम लोग उनसे बात इंटरेक्ट करते तो हम लोग को सीखने मिलता था, और उन इंस्पिरेशन मिलता था। एक बार पलसीकर से बात किया तो पलसीकर बोलते, मैंने पूछा था उनको कि आप आर्टिस्ट कैसे बने। हाँ। तो बोलते कि मैंने बाय सीइंग द बैड पेंटिंग, बाय सीइंग द बैड पेंटिंग आई बिकम आर्टिस्ट। ऐसा उनका डायलॉग था कि मैंने एक बुरा पेंटिंग देखा और उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलके मैंने काम काम किया। स्टार्ट किया। हाँ। ऐसा हाँ। हाँ। ऐसा हाँ। उनका ये था। हाँ। हाँ। अगर आप आर्टिस्ट नहीं बनते तो क्या बनते, मैं डॉक्टर बनता था बोलते थे। एंड ही वॉज अ वेरी गुड प्रोफेसर ओके। जे में। हाँ। हाँ। ऐसे हम लोग जाते थे और ऐसे लर्न करते थे, कोई ऐसा हाथ पकड़ के सिखाएगा नहीं, हम लोग को देख के आपके पास से क्या है अच्छा है, इनके पास से क्या है, तो ऐसे हम लोग वैसे सीखते हैं। ये तो ज्ञान की गंगा बह रही है, बह रही है, आप में ताकत होनी चाहिए कितना पानी आप निकाल सको। निकाल सकते। जैसा सूरज है, हाँ। सूरज सब जगह बढ़ता है, गटर का पानी का भी ऑपरेशन करके अच्छा वाला पानी लेके जाता है। हाँ, बराबर है। हाँ, हाँ। हाँ। समुद्र से भी लेके जाता है। हाँ। गटर का पानी वैसे ही गंदगी वहीं रहती है, लेकिन पानी प्योर आ जाता है। राइट। राइट। वैसे अपना ये है। आपको रास्ते भर में गुरु मिलते हैं, आप उनसे या उनसे जितना जहाँ से नेचर इज अ गुरु हाँ। इनफैक्ट। ओके। ओके। मेरे को टेम्पल विजिट करना बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि स्कल्पचर मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो स्कल्पचर में बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं हम लोग, ओके। पास्ट का, ऐसा क्यों ऐसा किया, ऐसा क्यों किया। तो उससे भी बहुत कुछ अपने को नॉलेज मिलते रहता है, और थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। तो मैं अगर इसको इस चीज़ को समराइज करूं कि किसी भी यंग आर्टिस्ट को जो अ, अभी मतलब या तो सीख रहा है या अपने एक आर्ट जर्नी पे आगे बढ़ रहा है, तो उसको उसके लिए ऑब्जर्वेशन
meeting Yeah, people, meeting people, meeting nature. मीटिंग एग्जिस्टिंग आर्टिस्ट जो अभी अभी जो नामचीन आर्टिस्ट है उनके उनसे बार बार जाके मिलना, Yeah, राइट, और नेचर से आपको ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें उनके आर्ट को एनहांस करेगी, yeah. विच इज़ बेसिकली विच यू और नॉर्मली क्या होता है मुन्ना, हाँ उधर वो ठोकते हैं कि नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। वो नहीं, फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। हाँ हाँ तो वो देगा तो आपका काम अलग होता है, अच्छा होता है, यू नो। जबरदस्ती आपको उसमें ठोकना नहीं, नहीं। पर अगर सिखाने के टाइम पे लाइक देयर आर नहीं, टू academic- डिफरेंट एकेडमिक के हिसाब से एकेडमिक तो आपको ठीक करना करना ही पड़ेगा, है, हाँ, करना पड़ेगा। but the student उसके has to बाद then, yes, the student has to then break that league कि या भाई जितना जितना एकेडमिकली जो मुझे डंडा मार के सिखाया, हाँ, ये मुझे ये लाइन इस तरह से खींचनी थी, ये प्रोपोर्शन से, ये ऐसे ही उसका अंडरस्टैंडिंग उसका अंडरस्टैंडिंग के के लिए बाद है, में वो यूज करना है, वो आपके ऊपर है। उसको या हाँ, उसको यूज करने के लिए यू विल हैव टू गो एंड मीट द मास्टर्स, यू विल हैव टू गो लुक एट अदर पीपल्स वर्क, यू विल हैव टू स्टार्ट गेटिंग इंस्पायर्ड एंड कॉपी द Yeah. मास्टर्स यस, कि उन्होंने उसमें से क्या क्या नहीं किया है। क्या किया, वो इससे Right, वो right, देखना right. पड़ेगा हाँ। आपको। अगर वेस्टर्न आर्टिस्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या उनका ये है। जैसे आप बता रहे हो मंदिर जाना, मंदिर जाते हैं आप टेम्पल्स में, या वो जो पुराने स्कल्पचर्स हैं, स्कल्पचर वो टाइम का मुझको अंदाजा देता हूँ, राइट, उस टाइम में कैसा होगा, यू नो। यू हैव टू इमेजिन, इफ यू आर गोइंग टू शिवाजी's फोर्ट, रायगढ़ और एनीवेयर, हाँ यू इमेजिन दैट एट दैट टाइम हाउ इट विल बी। हाँ, घोड़े लेके रहते हैं, कैसे रहते होंगे, कैसा कॉस्ट्यूम रहेगा, वो सब मेरे को ऐसा इमेजिनेशन करते रहते राइट, हाँ, जब आप स्पॉट पे जाओगे तभी आपको ये इमेजिनेशन वो दैट फीलिंग आता है दैट इज राइट ना। आपके इतने इतने सालों के जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें आप यू हैव मेंटोर्ड सो मेनी छोटे बच्चों से लेके जब तक आप प्रिंसिपल थे, और अब भी जब आप बड़े आर्टिस्ट या किसी को भी आप मेंटोर करते हैं, तो आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे दर्शकों को अपना कुछ एक मैसेज दीजिए, कुछ बताइए उनको, आप क्या बोलना चाहेंगे। मैं यही कहूँगा कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे जब आर्ट करते हैं तो उनको करने देना चाहिए, और यू हैव टू मोटिवेट देम, यू हैव टू इंस्पायर देम, एंड कलर्स लाके दीजिए, पेपर्स लाके दीजिए, काम करने दीजिए। आप उनको रोकना नहीं है, क्योंकि रोकने से क्या होगा, आपका वो बच्चे का अंदर का जो फीलिंग्स है वो मार दिया जाएगा और वो दूसरा डाइवर्ट हो जाएगा, यू गॉट इट। तो इसके लिए आप उसको मोटिवेट करो। आर्ट को कम सब्जेक्ट मत सोचो, आर्ट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू द अदर सब्जेक्ट। आर्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल स्पिरिचुअल, अपना ग्रो करता है। और ग्रोइंग स्टूडेंट जो होते हैं आर्ट कॉलेज का, उनको यही कहना है कि आप लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट करना है, उनसे बातें करना है, और उससे आप सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कॉलेज में बैठ के सीख सकते हैं, बाहर भी जाके आप सीख सकते हैं। आप किधर भी जाओ, आप डिस्कशन करो अपने आप में उस आर्ट के ऊपर, यू नो, तभी आपको उसके अंदर कुछ मिलेगा। तो सर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आज आए, आपका टाइम निकाला, हमको आपकी जर्नी के बारे में बताया। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने हमको इतना इंसाइट दिया, एंड इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग अबाउट द मास्टर्स उनकी। तो आपके एनरिचिंग एक्सपीरियंस से हमको बहुत फ़ायदा मिला। सर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारे एपिसोड में क्या पसंद आया, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम और भी दूसरे आर्टिस्ट, दूसरे मीडियम्स, और ऐसी ही बहुत अच्छी कहानियाँ साथ में लेके आए। धन्यवाद। जय हिंद।